वेलकम बैक टू अपनी मैथ्स क्लास। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर शिल्पा। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम केस नंबर 2 प्रॉपर फ्रैक्शन का केस नंबर 2 स्टडी करेंगे, दैट इज योर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। We are taking example, resolve into the partial fraction 2x plus 3 upon x square into x minus 1. Whenever we have solved the partial fraction example, first of all we have to calculate the degree of the numerator and the degree of the denominator, right? So in this case, x having highest power in the numerator is 1, right? And the denominator, there are two factors, so we have to add the powers of x. So here the power is 2 and here the power is 1. We have to add them. So totally we have degree of x is 3. Obviously 1 is less than 3. So this is the example of proper fraction. हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो हम लोग ये स्टेप करना भूल जाते हैं और कई बार ये मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स के साथ कि हम इम्प्रॉपर से सॉल्व करते हैं। सो इसलिए हमारे हाथ को और हमारे माइंड को हमने इस तरह फंक्शनल करना चाहिए कि हम स्टार्ट ही उस स्टेप से करें। ओके, सो दिस इज नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो योर एग्जाम्पल इज 2x upon 3 x square x minus 1. Now see carefully. Here x square, that means your x minus 0 whole square factor, right? So 1 is x minus 1, which is linear factor, right? So I'm writing here. Then another is x square. X is repeated 2 times, right? So it is repeated linear factor. Oh fine, okay. यहाँ पे linear क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि मैडम यहाँ पे x square है, ये quadratic है, then why we are calling linear? So देखो ये x square है, that means I can write x minus 0 whole square. यहाँ पे आप x की पावर देखिए, यहाँ पे x की पावर 1 है, right? So ये फैक्टर के हिसाब से ये हुआ लीनियर, और लीनियर कैसा है तो ये जो फैक्टर है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो इट इज लीनियर नॉन रिपीटेड. ओके, सो नाउ d अपॉन कितनी बार रिपीट हो रहा है, पहले तो उसकी पावर हम 1 टाइम लिखेंगे, प्लस c x square. This is your equation number 1. Fine. Now we are taking LCM. So this remains as it is, left hand side. Make sure that you are writing left hand side always. Okay. So now here x square and x minus 1. यहाँ पे आप केयरफुली ध्यान दीजिएगा, a के नीचे डिनोमिनेटर क्या है x minus 1. अगर मैं x minus 1 यहाँ से कट करती हूँ तो what is remaining a square. So I am multiplying this a square plus b. b के नीचे डिनोमिनेटर क्या है x है, 1x cancel from here, so what is remaining 1x quantity and this your x minus 1, right? Plus c. What is the denominator of c? X square. Complete x square you can delete from denominator. What is remaining? x minus 1. Fine. So इस तरह से इसको हम लोग LCM लेते हैं. 2x plus 3 is equal to a into x square, sorry, right like this, plus b into x, x minus 1 plus c into x minus 2. This is your equation number 2. For a, I am substituting denominator. What is the denominator of x minus 1 is equal to 0, that means x is equal to 1 in equation number 2. जहाँ पे भी x होगा आपको वहाँ पे आपको 1 डालना है, ठीक है? So this is 2 of 1 plus 3 a time 1 square is 1 plus यहाँ पे देखिए 1 minus 1, तो ये क्वांटिटी तो आपकी 0 हो रही है, यहाँ पे भी 1 minus 1 है तो दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो 0, सो ये दोनों 0 हो जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे क्या हुआ 5. So a is nothing but your 5. Okay, ठीक है? Now we are finding the value of b. So for b, put what is the denominator of b? x. So just equating with 0 means x is equal to 0 आपका ही आ गया. बस ये आपको कहाँ पुट करना है? In equation number 2. यहाँ पे आप पुट करेंगे. So 2 into 0 is 0 plus 3 is equal to, ये तो आपका 0 हो गया, प्लस b, यहाँ पे भी आपका ये 0 हो रहा है, राइट? प्लस c, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है
0 माइनस 1, ठीक है। सो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू माइनस सी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब देखिए मैं फाइंड कर रही थी बी के लिए और आगे सी की वैल्यू, तो ये ऐसे क्यों होता है। केस नंबर 1 में ये होता है क्योंकि वहाँ पे लीनियर फैक्टर होते हैं, यहाँ पे रिपीटेड होता है। हमने ये एक्स यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो जब एक्चुअल में आप ये वैल्यू बी के नीचे का जब डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जनरली वैल्यू सी की आती है, ठीक है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रोसेस करते जाओगे तो आपको हो जाएगा कि इसके नीचे इक्वल टू 0 पुट कीजिए, इसके नीचे का डिनोमिनेटर इक्वेटिंग विद 0, ओके फाइन। सो नाउ आवर जॉब इज फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो फॉर बी, अब बी के लिए क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर तो आपने कंसिडर कर लिए, लेकिन इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इक्वेट 0 के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है, मीन्स क्वाड्रेटिक। हम तभी कर सकते हैं जब वो लीनियर फैक्टर होता है, ठीक है। व्हेन इट इज लीनियर फैक्टर देन ओनली वी कैन कैलकुलेट, वी कैन इक्वेट विथ 0, ओके। सो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब हमारा काम है कि ये जो तीनों नंबर्स है इसमें से एक कोई नंबर आता है, दैट मीन्स जैसे अब यहाँ पे है x माइनस 1, तो यहाँ से आपको एक नंबर मिला, x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू 0 भी एक है, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए, नॉट 0। 0 को छोड़ के जो कोई नंबर होगा इन दोनों में से वो नंबर आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पे आपका 1 था, इसका निगेटिव नंबर, इसका निगेटिव नंबर, ठीक है। सो आपका ये हो जाएगा x is equal to minus 1. So you are putting x is equal to minus 1 in equation number 2. So equation number 2 में आप वैल्यू डालिए। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका x is equal to 2 आपने पुट किया होता, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू अगर आपकी x is equal to 0 होती तो थर्ड वैल्यू आप क्या पुट करते, x is equal to minus 2, ठीक है। और कभी अगर ये रिवर्स हुआ, फॉर एग्जाम्पल x is equal to 3 है, ठीक है, सेकेंड वैल्यू इधर से आपने निकाली एक वैल्यू, सपोज 3 आ गई, ये कोई फैक्टर के नीचे से आपने कोई वैल्यू निकाली, सपोज वो माइनस 3 है, तो थर्ड नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो आप हमेशा 0 पुट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है पैटर्न, एक कोई नंबर होता है 0 के अलावा उस वो नंबर, उसका नेगेटिव नंबर और 0, ये तीन वैल्यूज आपको हमेशा पुट करनी होती है। ये आप पुट करते हो तो आपको ABC की वैल्यूज फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो अब हम कहाँ आते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में आपको वैल्यू डालनी थी x इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे आप माइनस 1 वैल्यू डालेगा, माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 टाइम्स, ये तो आपका 1 हो गया, प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। सो माइनस 2 प्लस 3 दिस इज 1 इज इक्वल टू a, ये क्या हो गया आपका माइनस 2 एंड माइनस, तो दैट मीन्स प्लस, यहाँ पे आपका हुआ माइनस 2 से। अब आपके पास a और c की वैल्यू है ना, तो अब वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो a इज माई 5 प्लस 2b, व्हाट इज द c क्वांटिटी, माइनस 3, सिंस a इज 5 एंड c इज माइनस 3। अब हमको बस ये कैलकुलेशन करना है, 2b आप एक जगह रखिए, बाकी सब आप दूसरी साइड ले जाइए, तो 1 माइनस 5, ये हो गया आपके प्लस 6, ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10, है ना। सो b इज इक्वल टू माइनस 5, सॉरी राइटिंग थोड़ा सा मेरा बराबर है। अब a की b और c की वैल्यू हमको मिल गई, सो व्हाट आई एम डूइंग, पुट values of a, b and c in equation number 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका ये है जो आपका गिवन एग्जाम्पल है, 2x प्लस 3, डिनोमिनेटर इज योर x स्क्वायर, x माइनस 1, व्हाट इज द a क्वांटिटी 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस b quantity is your minus 5 plus c quantity is your minus 3, है ना। बस आप इसको अच्छे से रीराइट कर लीजिए, 2x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर, x माइनस 1 इज इक्वल टू
5 upon x minus 1 plus minus become minus 5 upon x minus 3 upon x. This is your required partial fraction. Now we can see another example. 3x plus 2 upon x plus 1 x square minus 1. What is the degree of numerator? Degree of numerator and degree of denominator. Always we should have to calculate. Degree is 1 in numerator, denominator degree is 3. So obviously 1 is less than 3. That means this is the proper fraction. What is your example? 3x plus 2 upon x plus 1 and x square minus 1. ठीक है, अब ये तो आपका फर्स्ट x plus 1 ये लीनियर है. द सेकेंड ब्रैकेट इज x स्क्वायर माइनस 1. इट कैन बी फैक्टराइज, है ना. फैक्टर हो रहा है तो हम फैक्टर करते हैं, नहीं होता है तो इरेड्यूसिबल में जाता है. दिस अगेन फैक्टराइज, सो वी कैन गेट x plus 1 x minus 1. मीन्स अभी यहाँ पे x plus 1 2 टाइम्स आया, राइट. सो आपका ये जो एग्जाम्पल है ये आपका कुछ इस तरह से हो गया. x minus 1 सिंगल है एंड x plus 1 होल स्क्वायर. ये क्वांटिटी अभी आपका स्क्वायर ब्रैकेट में जा रहा है ना. सो अब आप कह सकते हैं कि दिस इज लीनियर एंड x plus 1 इज रिपीटेड 2 टाइम्स. ठीक है. सो अब मैं क्या करूँगी, इस एग्जाम्पल को लूँगी. देयरफॉर 3x minus 2 अपॉन x minus 1 एंड x plus 1 होल स्क्वायर. तो ये आपका रिपीटेड लीनियर है, ऑब्वियसली x की पावर 1 है. सो रिपीटेड लीनियर फैक्टर a अपॉन जो नॉन रिपीटेड है वो मैं पहले लिख लूँगी प्लस b अपॉन x plus 1 हैविंग पावर 1. उसके बाद कितनी पावर तक वो जा रहा है वहाँ तक हमको लिखना है x plus 1 होल स्क्वायर. ये स्क्वायर तक जा रहा है तो यहाँ पे लिख के मैं रुक रही हूँ. अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं d अपॉन x plus 1 क्यूब ऐसे लिखती. ठीक. सो नाउ आई एम टेकिंग LCM. ऑलवेज राइट लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स, वरना एग्जाम्पल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा ना. सो डिनोमिनेटर में क्या है, अभी आपका एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यही यहाँ पे आती है ना. सो a इंटू a के नीचे कौन है x minus 1. जस्ट हाइड फ्रॉम हियर. व्हाट इज रिमेनिंग x plus 1 होल स्क्वायर प्लस b के नीचे कौन है x plus 1. जस्ट डिलीट 1 x plus 1 ब्रैकेट. तो क्या रहा x minus 1 और यहाँ से एक चली गई है, मतलब एक x plus 1 रहा है. तो x plus 1 एंड x minus 1 प्लस c के नीचे कौन है x plus 1 होल स्क्वायर. तो ये पूरा फैक्टर यहाँ से डिलीट हो जाएगा. जस्ट रिमेनिंग x minus 1. ठीक है. सो डिनोमिनेटर दोनों साइड से आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. न्यूमरेटर क्वांटिटी रिमेन्स ओनली. So this gives you x plus 1 x minus 1 plus c into x minus 1. Now this is your equation number 2. Now our job is find the value of a, b and c, right? So for a, put a के नीचे कौन है x minus 1 equal to 0. That means this gives you x is equal to 1. ये हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है ना. तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी -2. यहाँ पे x plus 1 डालना है, मतलब 1 plus 1 is 2, 2 का स्क्वायर इज 4. एंड डायरेक्टली राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है 1 minus 1, ये तो 0 जा रहा है, प्लस यहाँ पे भी 1 minus 1 ये 0 जा रहा है. फाइन. सो अब ये क्या होगा 3 minus 2 इज आई एम सॉरी यहाँ पे प्लस है. ठीक है ना, रियली सॉरी. सो ये आपका 3 plus 2 ये आपका 5 हो जाएगा. दैट मीन्स यू गिव द वैल्यू ऑफ a इज 5 upon 4. फाइन. अब आप b की वैल्यू फाइंड करोगे. सो फॉर b अब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, b के नीचे कौन सा नंबर है, b की नहीं आएगी, ये c की आएगी, है ना. हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जब ये रिपीटेड होता है तो b के नीचे का अगर लेते भी हो फैक्टर तो भी वो c की वैल्यू देता है.
सो पुट, वैसे ये लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने लिखा नहीं लिखा उससे कोई मैटर नहीं करता है ना, आपको फाइनली वैल्यू भी डालनी है। x plus 1 is equal to 0, that implies x is equal to -1 in equation number 2। ठीक है, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर है। 3 इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, अभी यहाँ पे -1 प्लस 1, तो ये तो क्वांटिटी आपकी 0 हो गई, यहाँ पे भी -1 प्लस 1, तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो गई। यहाँ पे बच रहा है -3 प्लस 2 इज -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 से, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो नाउ फॉर b की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। सो पुट x इज इक्वल, क्या करोगे, एक आपने नंबर लिया था 1, सेकेंड टाइम आपने उसका नेगेटिव नंबर लिया -1, मतलब ये दो चीज़ें तो फुलफिल होगी, एक नंबर होता है और उसका सेकेंड टाइम नेगेटिव नंबर होता है, तो फिर बचा क्या 0, राइट। सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो अब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे। सो ये तो आपका 0 हो गया x के साथ में, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है a इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1 प्लस c इंटू 0 माइनस 1। अब देखिए क्या क्या होता है, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आपका a क्वांटिटी वैसे ही रह गया, ये क्या हो गया 1 इंटू -1, दिस बिकम माइनस, राइट। सो माइनस b, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है -c। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ a एंड c, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a और c की वैल्यू। a की वैल्यू है 5/4, b एज इट इज रहेगा, c की वैल्यू है 1/2। सो b मैं इस साइड लेके आ रही हूँ, 2 को उस साइड लेके जा रही हूँ। सो देयरफॉर माय b इज -5/4, ठीक है ना, एलसीएम भी आपने अपने की वैल्यू का। अब हम लोग का जॉब क्या है, अब आपकी ABC की सबकी वैल्यू अगर आ गई है तो आपको ये पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट फाइन, तो अब कहाँ इक्वेशन नंबर 1, यहाँ 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 होल स्क्वायर 5/4 x माइनस 1 प्लस b इज योर -5/4। and c is your 1/2। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 1/4 आप कॉमन ले सकते हो, राइट। 1/4 मैंने यहाँ से सब जगह से कॉमन अगर ले लिया तो दिस रिमेनिंग 1/x माइनस 1 -5 मैंने 1/4 कॉमन लेती हूँ ना, यहाँ पे बोल रही हूँ और लिख रही हूँ गलत। ठीक है, 1/4 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई करके देखिए सेम आंसर आ जाएगा, फाइन। तो ये था आपका रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से लेक्चर पे चाहिए। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।